علیکم، میں ہوں آئزہ عامر، بی ایس تھرڈ سیمسٹر نپس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس ٹائم ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس میں، جہاں کے ایک اسپیشل لیکچر سیریز جو ہے، ایک اسپیشل لیکچر وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے، دیٹ از جوناگڑھ از پاکستان. یہ اس کا ٹاپک ہے کہ جوناگڑھ پاکستان ہے، اور یہ آرگنائز کیا جا رہا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے. تو آئیے چلتے ہیں، لیٹس سی کہ اسپیشل جو لیکچر ہے جوناگڑھ از پاکستان، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. خیال ہے، کیا اوپینین ہے، ایسے سیمینارز کنڈکٹ ہونے چاہیے؟ I was just saying that we should arrange those types of seminars because we are studying in the top ranked university of the country, and these are the things that give us the exposure. If the knowledge or the books are numerable on the internet or the other universities, these are the things that helps you to interact with people, that helps you to learn from those people who have the experience, who have the exposures, and the diversity in the university enhances the capabilities of any student. So the seminars should be arranged by any department, by every society. So it is very useful. Thank you so much. It was undoubtedly very constructive session. Being the student of Pakistan Studies, I am Furqan Talib from BS 5th semester. Such sessions open your mind. Such things you don't get to learn in the classes sometimes. So the native people, the indigenous people let you know what are the ریئلٹیز، حقیقتیں کیا ہیں. کبھی کبھی ہسٹری کو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو صحیح تاریخ سے محروم رکھا جاتا ہے. تو جو نیٹو لوگ ہوں، وی آر پریولیجڈ ٹو بی دا پارٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی، جہاں پر ایک ایسا سیشن ہوا جہاں پہ نواب آف جوناگڑھ اسٹیٹ آئے. انہوں نے اپنی تاریخ اپنی زبانی بتائی کہ جوناگڑھ اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ پاکستان میں انیکس ہونا چاہتے تھے، انہوں نے ایکسیڈ کر دیا تھا، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس انڈین ٹروپس کیم دیئر اور وہ نہیں ہو پایا. اینڈ ٹل ٹوڈے لائک کشمیر، جوناگڑھ کا ایشو بھی وہیں کا وہیں ہے. دو اٹ از ناٹ ہائی لائٹڈ کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن اٹس آلسو اے برننگ ایشو. جوناگڑھ اسٹیٹ کا ایشو بہت زیادہ بڑا ایشو ہے. تو ایسے سیشنز ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایک ایسی سوچنے کی قوت کو اجاگر کرتے ہیں، انہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. دیٹس آل. اور ایسے سیشنز، ایسی کانفرنسز ہماری یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس ایسی چیزوں سے مستفید ہو سکیں. میرا نام مدثر ایوب ہے اور میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج یہاں پر ایونٹ ہوا جس میں اسپیشلی ہز ہائنس نواب آف جوناگڑھ جناب نواب محمد جہانگیر خان جی اور ہز ایکسیلنسی صاحبزادہ سلطان احمد علی دیوان آف جوناگڑھ اسٹیٹ جو ہیں ایز اے چیف گیسٹ انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے یہاں پر جوناگڑھ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس کے لیے ایک ٹاک دی. تو یہ جو پروگرام تھا یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار پاکستان اسٹڈیز نے آرگنائز کیا، اور ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کے حال میں یہ آرگنائز کیا گیا. اس کو ڈین آفس نے ڈیل کیا. اٹ واز این امیزنگ گیدرنگ ہیئر. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح جوناگڑھ ایشو ہے، یہ پہلی پرنسلی اسٹیٹ تھی جس نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا. 15 سپتمبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر سائن کرنے کے بعد نواب آف جوناگڑھ ہز ہائنس نواب سر محمد محبت خان جی صاحب نے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنے کے بعد اس اسٹیٹ کو پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا. اس کے بعد 19 نومبر کو انڈیا نے فورسیبلی جو ہے یہاں پر اپنے ٹروپس بھیج کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح یہ پاکستان کی ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ تھا انڈیا کی طرف سے کہ انہوں نے پاکستان کی
इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की जो एक सालमियत है उस पर हमला करके इस रियासत को अपने कब्ज़े में ले लिया। और फ्रॉम द टाइम ऑफ पार्टीशन टिल नाउ ये जो इशू है ये यूएन के अंदर गया सर ज़फ़रुल्लाह के दौर में, वहाँ पर ये पेंडिंग है और इस पर बहुत सारी जो है चीज़ों की ज़रूरत है, रिसर्चेस की ज़रूरत है। और यूनिवर्सिटी के और डीन ऑफिस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, स्पेशली द डिपार्टमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ के, कि उन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पर इस प्रोग्राम के नतीजे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवेयरनेस दी गई कि जूनागढ़ जो है ये पाकिस्तान का काज है और जूनागढ़ इज़ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक बाकायदा हिस्सा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो स्टिल इंटैक्ट है और इसकी जो लीगल स्टेटस है इसका वो यूएन भी इसको रिकग्नाइज़ करता है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। और जो नौजवान नस्ल है उनको चाहिए कि वो इस इशू पर ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनको अवेयर करें, बल्कि इस पर रिसर्च करके इसको फर्दर रिवाइव करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। इस सेशन को अटेंड करने के बाद यही महसूस हो रहा है कि जूनागढ़ इज़ पाकिस्तान। इससे पहले तो शायद हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जूनागढ़ क्या है, लेकिन नवाब साहब से मिलने के बाद और साहबजादा की ब्रीफिंग के बाद यही लगा कि जूनागढ़ इज़ पाकिस्तान। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ निप्स और इस कायद आज़म यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के हैसियत से मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइप के सेशंस होने चाहिए निप्स में भी और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी, ताकि हमारी अवेयरनेस ज़्यादा हो जाए। अब जूनागढ़ के बारे में हमें एक साल से कुछ नहीं था मालूम कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अभी इस सेशन के बाद हमें ये मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी हमारा अपना है, जैसे कि कश्मीर है तो ये भी हमारे साथ है। मेरा नाम शराज अली है, निप्स थर्ड सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ। स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ स्टेट जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है या इसकी टेरिटरी है। तो आज यूनिवर्सिटी कायद आज़म जो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, इसके एक सेमिनार में हमें पता चला है कि जूनागढ़ स्टेट जो है वो पाकिस्तान का भी एक टेरिटरी का पार्ट है। तो इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन फ़र्स्ट टाइम, अब हम इस पर सर्च वगैरह करेंगे कि देखेंगे ये कहाँ पर लोकेशन है और हिस्टोरिकली इसका बैकग्राउंड कहाँ पर था। तो इस हवाले से जो है ना हम देखेंगे आगे, और ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। सेमिनार न्यू चीज़ें जो है वो आनी चाहिए और उनके बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। जैसे मुझे इस इवेंट के बारे में इल्म हुआ कि निप्स पाकिस्तान स्टडीज़ यहाँ पे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जूनागढ़ इशू पे इवेंट करवा रहा है, तो ये मेरे लिए बायस मुसरत और ख़ुशी का इज़हार था कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक इस इशू पे इवेंट जिस पे मेरा रिसर्च थीसिस था, तो हम भी इस कार खैर में शामिल हो गए और अपने दोस्तों को इनवाइट किया। ये इवेंट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। नवाब साहब हिज़ हाइनेस नवाब जहांगीर खान जी आप तशरीफ़ लाए और दीवान साहब हिज़ एक्सीलेंसी सुल्तान अहमद अली साहब आप भी तशरीफ़ लाए और यूथ को इस काज के बारे में आगाह किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसका करंट स्टेटस के बारे में। तो ये एक मेरे ख़्याल से एकेडेमिया के तौर पे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, आईआर के स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ये एक चीज़ है कि हम अगर अपने पॉलिटिकल मैप की तरफ देखें तो हमारा पॉलिटिकल मैप पे कोने पे हमने जूनागढ़ पे भी अपने मैप का हिस्सा बनाया हुआ है। तो एज ए स्टूडेंट्स हमें ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये जूनागढ़ इशू है क्या और इसके बारे में मज़ीद हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने स्टार्ट किया है इस पे रिसर्च एज ए थीसिस लिखने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आगे भी इस पे मज़ीद रिसर्च होगी और इस तरह की इवेंट मुनक़िद होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह के सेशंस यूनिवर्सिटीज़ में होना कितना बेनिफिशियल है कि आपका वॉइस जो है वो आप 1 to 1 सबके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, और इसको आप कितना एडवांटेजियस समझते हैं? मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने आज इस पे डिबेट रखी जूनागढ़ पे, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग के लिहाज से भी और डाइवर्सिटी के लिहाज से भी पूरे पाकिस्तान की यहाँ नुमाइंदगी है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो बुनियादी तौर पे उनको डिस्कस करने का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है वो यूनिवर्सिटी है। जो यहाँ यूथ बैठी है, यहाँ से स्कॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्यूचर प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलिसी मेकर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो आज चीज़ें अपने जहन में रख के जाएंगे, फ्यूचर में ये चीज़ें पाकिस्तान को बेनिफिट करेंगी। Thank you so much. Okay जी, so here we are with the conclusion of this phenomenal and interesting session.
So, at the end, I would like to add a few words here because drop of water makes an ocean. تو جی میرا اس پہ یہ کنکلوژن ہے کہ ایسے انفارمیٹیو سیشنز جن میں اتنے زیادہ آپ کے پاس اوشن آف نالج آ رہا ہو یہ ضرور ہونے چاہیے بیکاز دے آر سچ این انٹریکٹیو سیشنز کہ اس میں دس از اے 2-way لرننگ. ٹھیک ہے, آپ کو ایک انفارمیشن دی جاتی ہے اینڈ دین یو آسک کویشچنز, یو کین آسک کویشچنز, آپ اپنی کنفیوژنس کو کلیئر کر سکتے ہیں, اپنا اوپینین آگے دے سکتے ہیں, اینڈ لائک دس دا نالج بلڈز اپ, اٹ accumulates, اور جب نالج accumulate ہوتی ہے then it can do wonders. So here Aiza Amir is signing off with this event and with the hope to meet you in the next. So stay tuned for more updates. Thank you and Allah Hafiz.